So it's the new, some kind of new platform for me, Go to training. Let me share my screen. So Neetu, are you there? There? Yes, sir, I am there. I have made you presenter. Okay, fine. So now I'm the presenter. I can see the notification over here. How many people are there? Can you please tell me? Actually, sir, 5, 6 people joined. 6 people are there. Okay, okay, fine. Sir, if you can give some background about you so that people uh, get to know about you. Oh, okay, sure. Let me share my screen. So hello, good afternoon, everyone. Am I audible to all of you? So if I'm not wrong, Jayashree Tomar, Om Patel, Sarang, Sonal Rana are there, right? Am I audible? Yeah, I can see your text messages. No issue. Okay, great. So just let me know whether you guys can see my screen or not. Okay, it's visible. Right. So firstly, let me just start with my introduction. Uh, my name is Abhishek Rajawat. So basically, I'm currently working with Quickly Technologies. That's a top cybersecurity company in India. And I'm a certified ethical hacker. I'm a certified blockchain developer. I'm a cybersecurity corporate trainer. I have given training to different organizations like Tata Consulting Services, Raksha Shakti Universities, or Quantum University, Chitkara University. So you can say majorly in North, I've covered most of the universities in India. I've also given trainings to about the pharmaceutical industry. So this is a brief introduction you can see over here. I'm a developer also. I'm very much interested and I do freelancing in web developing. So it's not like if you are into security cyber security thing, you can do other things. So it's basically up to you what you want to learn. Like so I've done some certification. So I'm certified by CISA. I'm certified with TTS. I've also certified with penetration testing and ethical hacking. So this is the little bit introduction from my side. Uh, if you want to ask anything regarding any doubt about ethical hacking, if you want to ask about me, then you can just type the text message over the chat box, so I can just read out and I'll be answering your questions, right? So let me just start with a little introduction. So I just wanted to know, you guys can speak or I can like you guys can speak or not? Is it like feasible to you, or you guys just can chat? Yes, sir, they can speak. They can discuss. They can Okay, if unmute if you themselves. guys if you guys can want to communicate with me, then it will be a great session from my side, I think. So otherwise, what you can do, you can just simply type the message over here, right? So let's just start. Firstly, see, when we talk about cyber security and ethical hacking, there are two things, right? First is cyber security and second is ethical hacking. Let me just quickly draw this thing over here. Right, ethical hacking. Anybody can please tell me, like, what do you understand by hacking? Like the word hacking, what is hacking? Any idea? So I'm guessing you guys are from, graduation level. You guys are at graduation level, or somebody is in the starting phase of graduation, or somebody is in the first or second year. So modify data or access, right? Sarang has answered. Very good. Modify data or access. Anybody else? What is hacking? It's a very small thing, like very small question from my side. What is hacking? What do you understand by hacking? Before getting started with the hacking, I just wanted to know आप लोगों का क्या व्यू है हैकिंग के बारे में?
Anyone else? Okay, no issue. So when we talk about hacking, the simple layman language, you can say, ki, what I want, I just want this job to be done by hook or by crook. Okay, so if there is a shortcut to perform anything, or you can say, if any task is related to your computer system, okay, or any system, whether it is a mobile, whether it is a computer, whether it is a server, whether it is a website or any network, wi-fi, anything. So if there is technology involved, so a hacker finds out a shortcut way to deals with the challenges which comes which comes in any technology. और you can say hackers क्या होते हैं ना, basically हमें टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत स्किल्ड लेवल पे नॉलेज होती है, राइट? इट्स नॉट लाइक कि सी एक मैकेनिक होगा वो, उसको क्या होगा, नॉलेज होगा कि हाँ एक साइकिल प्रोडक्शन हाउस से एक साइकिल आया है, राइट, एक मोटरसाइकिल आया है। नाउ एक मैकेनिक को ही पता होगा कि ओके फाइन, व्हाट इज द थिंग कि उसमें कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से वो ऐसा साउंड करने लगा है। इन द केस ऑफ कार, राइट, अगर कोई कार है, कार के साउंड से ही एक मैकेनिक पता लगा लेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या होगी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हैकिंग ना, so we are skilled professional in technology, that's it. So modifying data or access is the part of hacking, right? If I'm saying ki if I'm saying ki I can access or modify any data available, whether it is available on the website, or it's your Gmail account, or whether it's your, you can say, your personal data, your mobile phone, your gallery, anything. So this is a part of hacking. What I can do, I can find out the different, or I can find out the very clever way to get into your mobile phone and get the data and access them and modify them. So this is the basic thing, hacking. So when you talk about ethical hacking, ethical word means in an ethical way. Ethical way means in a permission way. So you have the permission to do hacking, that is called as ethical hacking. Now hacking is illegal. When we talk about ethical hacking, that is not illegal. So what companies are doing right now, they are hiring ethical hackers, not hackers. So basically there are like many types of hacking hackers are there. So black hat hackers are, सुना होगा आप लोगों ने, black hat hackers are there, white hat hackers are there, gray hat hackers are there. So see, black hat hackers are basically जो लोग illegally काम कर रहे हैं, ठीक है, इलीगल मीन से पैसे कमा रहे हैं। उन्होंने क्या किया, कोई एक वेबसाइट को टारगेट बनाया, कोई पर्सन को टारगेट बनाया, उसका बैंक अकाउंट साफ कर दिया, वेबसाइट का डेटा उड़ा दिया, उनका डेटाबेस हैक कर लिया, राइट, उनका फेसबुक टारगेट किया। अब तुम देखते हो न्यूज में, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट लाइक ट्विटर गेटिंग हैक्ड, इंस्टाग्राम गेटिंग हैक्ड। सो दिस इज द थिंग्स, so this comes under black hat hacking. They don't have permission. Government can find them, and they can fine them, they can also fine them. उसमें सजा भी होती है अंडर द आईपी एक्ट 2000। इसके अंडर पूरा सेक्शंस बने हुए हैं, राइट, कि अगर आप किसी पे डॉस अटैक कर रहे हो, मान लो नहीं, किसी का आप फेसबुक का पासवर्ड चुरा रहे हो, किसी का इंस्टाग्राम हैक कर रहे हो, तो उसके लिए डिफरेंट सेक्शन है आपको पनिशमेंट देने के लिए विथ चार्जेस। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाइट हैट हैकिंग, these white hat hackers are directly connected with ethical hackers, right? For example, me, I'm a white hat hacker. I do have the permission for hacking, right? मेरी कंपनी मेरे को पैसा दे रही है हैक करने का। क्यों दे रही है? बिकॉज सी, मैंने एक वेबसाइट, माई कंपनी, मेरी कंपनी में जो डेवलपर्स है, दे हैव क्रिएटेड वन वेरी ब्यूटीफुल वेबसाइट दैट इज वेरी फ्लॉलेस, नो इश्यूज आर देयर। बट व्हाट if a hacker is getting into the database of this company website और वो उस डेटाबेस को चुरा लेता है, राइट? सपोज मिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा चोरी हो रहा है, जो हमारी क्विक हील इज अ ब्रांड, 30 years से इट इज इन द मार्केट, इन द टॉप एंटीवायरस राइट नाउ इन इंडिया। सोचो वो उन जो हमारे साथ यूजर्स जुड़े हैं उनका डेटा चुरा रहा है और उसको ब्लैक मार्केट में बेच रहा है, राइट? तो अब जैसे ही ये न्यूज फैलेगी इंडिया में, so the problem will be the reputation of the company, right? बहुत सारी चीजें जो इफेक्ट होंगी। now the reputation will be affected, it will be affected, and now
कंपनी का जो मार्केट होगा, शेयर होगा, शेयर मार्केट बहुत डाउन चला जाएगा. सो दिस इज द मेन थिंग. दैट इज वाई टॉप ऑर्गेनाइजेशन, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखो, फेसबुक, Amazon, Google, they are spending billions or you can say millions of dollars. Millions of dollars they are spending in the security, only security. कुछ कंपनीज क्या करती हैं, थर्ड पार्टी मतलब बाहर से हैकर्स को हायर करती हैं, कुछ रेंट पे लेती हैं, कुछ अपनी टीम बनाती हैं, राइट. और इसी वजह से मुझे परमिशन दी जाती है कि आप क्या करो, आप मेरी ही वेबसाइट, लाइक सपोज क्विकहिल ने मुझे बोला है आप लोग मेरे सर्वर्स को हैक करो, पर बराबर करते रहो, दिन रात देखते रहो कि कोई इसमें कमी तो नहीं है कहीं से. मैं अगर हैक कर पा रहा हूं तो दूसरा हैकर भी कर पाएगा बाहर से, राइट. सो हमारा टास्क क्या है, हमारा व्हाइट हैट हैकर, एथिकल हैकर का जॉब है इज टू गिव द वीकनेस ऑफ एनी सर्वर और वीकनेस ऑफ एनी वेबसाइट और एनी सिस्टम. हम वो रिपोर्ट करके उनको देते हैं अपनी कंपनी को, और दे व्हाट दे विल डू, जो डेवलपर्स बैठे हैं, पूरा आईटी टीम बैठा है, वो लोग उसको सिक्योर करते हैं. सो दिस इज द मेन थिंग. लास्ट टाइम अभी तुमने सुना होगा कॉग्निजेंट पे रैंसमवेयर अटैक हुआ था, अप्रैल की बात है, राइट. सो ये अबॉट इंडिया, द फार्मास्यूटिकल, तुम्हें तो पता होगा अबॉट की कितनी दवाइयां आती हैं, राइट, छोटी छोटी कंपनियां. सो व्हाट इज द थिंग, अबॉट पे फरवरी में आई रिमेम्बर उन पे रैंसमवेयर अटैक हुआ था. 20 मिलियन रैंसम मांगा था उन्होंने, $20 मिलियन लिटरली. सो व्हाट दे कॉल्ड अस. वैसे तो ये सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वी नॉट अलाउड टू से, बट कुछ कंपनीज कहती हैं कि हाँ यू कैन शेयर, नॉट एन इशू विद अस, ठीक है. तो उन्होंने क्या किया था, न्यूज में आने से पहले दे कॉल्ड अस एंड अ टीम फ्रॉम आवर साइड. हम लोग वहां गए, हम लोगों ने सर्वर टेस्ट किया, सिस्टम टेस्ट किया, वीकनेस पता की. तो बेसिकली एक ईमेल के थ्रू एक एम्प्लॉय ने एक गलत लिंक पे क्लिक कर दिया था. ही गॉट एन ईमेल, जो स्पूफ्ड ईमेल था, उसको ऐसा लगा कि ये ईमेल मेरे कंपनी के सीईओ का है, सीईओ सीटीओ का है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर का है. तो नाउ व्हाट हैपेंड, ही जस्ट डेलिबरेटली क्लिक्ड ऑन दैट लिंक, और वो लिंक था मलिशियस लिंक था, ठीक है, वो मलिशियस लिंक था. अब जैसे ही उसने क्लिक किया तो वो पर्टिकुलर सिस्टम और उससे कनेक्टेड जो भी नेटवर्क था, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन जिसको बोलते हैं, वो पूरा हैक हो गया, पूरा. दैट इज ब्लॉक्ड. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट रैंसमवेयर अटैक है ना, दिस इज द मेजर अटैक, रैंसमवेयर अटैक. सो दिस इज द यू कैन से मोस्ट डेंजर अटैक टिल डेट एनकाउंटर हुआ है. इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, आपके पास यू हैव वन मैलिशियस लिंक, ओके. सो व्हाट हैपेंस, आपका पूरा कंप्यूटर का जितना भी डेटा है, इंक्लूडिंग योर पर्सनल फाइल्स, इंक्लूडिंग सिस्टम फाइल्स एंड एनीथिंग और एवरीथिंग इन द कंप्यूटर इज इनक्रिप्टेड. इनक्रिप्टेड मतलब होता है ना, अगर आप लाइक थोड़ा सा पता होगा व्हाट इज इनक्रिप्शन. इनक्रिप्शन मींस होता है कन्वर्टिंग वन डेटा फॉर्मेट टू अनदर डेटा फॉर्मेट, राइट. पूरा डेटा एक तरह से इनक्रिप्ट होके ब्लॉक हो जाता है रैंसमवेयर अटैक में. नाउ यू कैन नॉट एक्सेस दैट डेटा, दैट डेटा इज वेरी प्रीशियस टू यू, यू कैन नॉट एक्सेस दैट डेटा. नाउ अब क्या लॉस हो रहा है, आप कंप्यूटर एक्सेस नहीं कर सकते कंपनी का. सोचो अबॉट की कितनी दवाइयां पर सेकेंड में मैन्युफैक्चर होती हैं, वो पूरा उनका प्रोडक्शन लाइन, पूरा प्रोडक्शन लाइन बंद हो गया था, क्योंकि मशीन तो अल्टीमेटली कंप्यूटर से ही चलती है ना. सो व्हाट हैपेंड देयर, उन्होंने, अब क्या हो रहा था, उस पर सिर्फ एक पॉपअप आ रहा था, एक पॉपअप कह रहा था कि जस्ट इफ यू वांट टू डिक्रिप्ट योर डेटा यू नीड टू एंटर की. अब वो की कैसे मिलता, वो की तब मिलता जब वो उनको $20 मिलियन देते तब. सो दैट वाज द इशू. अब उन्होंने हमको कॉल किया. सी रैंसमवेयर अगर आपके सिस्टम पे हो चुका होता है, हम कुछ नहीं कर सकते, एंड नोबडी कैन डू एनीथिंग. हम क्या, कोई भी नहीं कर सकता, इवन इट इज मैकएफे और इवन इट इज नॉर्टन, बिट डिफेंडर, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, और इट इज क्विकहिल. नाउ हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, दिस इज योर प्रीसेट डेटा, जस्ट पे देम मनी. सो दिस अमाउंट इज कॉल्ड एट रैंसम. तो दे पेड दैट रैंसम अमाउंट टू देम. उसके बाद उनका डेटा जैसे ही डिक्रिप्ट हुआ ना, हमने पूरा सिस्टम टेक ओवर किया और शट डाउन करके उसका फॉल्ट निकालने की कोशिश की, टेस्ट किया सिस्टम को बहुत ही लेवल पे. प्री पोस्ट असेसमेंट होता है, दो टाइप का असेसमेंट होता है.
pre-assessment and post-assessment. That thing you're gonna run and learn in VAPT. When आप जब ethical hacking से VAPT पे जाओगे, VAPT stand for vulnerability analysis and vulnerability assessment and penetration testing, right? So that is a part of your advanced version of ethical hacking, you can say. For the basic version, it's just ethical hacking. We have 5 phases. Okay, so let's just talk about 5 phases. I'm guessing कि आपको ransomware का थोड़ा सा एक scenario पता होगा. That thing, that malicious link, ये मैंने बताया ना आपको, malicious link उसको मिला था एक employee को, उसने click कर दिया था. So this particular process is called as phishing. आपने सुना होगा, आप गए भी होगे फिशिंग करने के लिए. तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप रॉड लेते हो, उसमें धागा बांधते हो, उसमें कुछ चारा डालते हो, ठीक है, मछली के लिए. मछली को आप जैसे पकड़ते हो ना, वैसे ही आप ना लालच देते हो एम्प्लॉय को, अपने टारगेट को, किसी भी टारगेट को. आपका फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है. उसमें चारा डाल के आप उसको लालच देते हो. देन वो स्टार्व करता है और उसको आके जैसे ही पकड़ने आता है ना, आप तुरंत रॉड को ऊपर खींच लेते हो. So this is like somewhat related to that technique only, phishing technique. से इसलिए इसको phishing का नाम दिया. So when you get a malicious link over a mail or by other means, आपको pretend होता है कि हाँ ये जो link है ना, ये बहुत important है. Okay, that is legitimate और authorized है. आपको लगेगा ऐसा, but it is not actually, right? So we talked about ransomware. Let's just talk about phases of ethical hacking in brief. हम जब पढ़ेंगे phases of ethical hacking, so basically there are 5 phases. अब देखो, हमेशा जब आप कोई टारगेट को एग्जीक्यूट करते हो ना, कोई भी टारगेट को एग्जीक्यूट करते हो, आपके पास 5 स्टेप्स होते हैं, और यू कैन से 5 फेजेस होते हैं, राइट? पहला स्टेट होता है टारगेट के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो, जितनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो कर लो. So that is called as information gathering, right? Now next होता है enumeration. अब आपने टारगेट के बारे में जितना ज्यादा जानोगे ना, सी आपको अपने दुश्मन से उतना खतरा नहीं है जितना दोस्त से है. एंड द रीजन इज व्हाई ही नोज योर वीकनेसेस आल्सो, राइट, वेरी वेल. आपका दुश्मन जो आपसे दूर रहता है, ही डज नॉट नो एनीथिंग, बट व्हेन इट इज योर बेस्ट फ्रेंड ना, वो आपका मान लो दुश्मन बन गया, सोचो इज द मोस्ट डेंजरस पर्सन टू यू. So that is similar to this scenario, information gathering. अपन क्या करते हैं, अपन we decide the target, right? Suppose मैं अपने फ्रेंड को टारगेट करना चाहती हूँ, या मैं सपोज करो मैं अपने एक्स को टारगेट करना चाहता हूँ, राइट? तो मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है. मुझे पता है कि उसका फेवरेट खाना क्या है, मुझे पता है कि वो मतलब उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मुझे पता है उसका फेवरेट हीरो कौन है, उसका फेवरेट पर्सन कौन है. और जनरली व्हेन यू क्रिएट पासवर्ड ना, व्हेन यू क्रिएट पासवर्ड, तो बहुत ही कॉमन पासवर्ड जो हमारे लोगों को देखने को मिला है एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल, वो कॉमन पासवर्ड क्या है ना, वो लोग ऐसे यूज करते हैं. जैसे सपोज करो उसका नाम है जैसे सारंग, राइट? तो वो पासवर्ड ऐसे क्रिएट होगा, सारंग है, इसका बर्थडे है 26 जून, ठीक है, 1998, राइट? तो क्या करेगा, पासवर्ड कैसे क्रिएट करेगा, कैपिटल एस RANG सारंग, और फेवरेट स्पेशल कैरेक्टर है ये सबका, @ मोस्ट ऑफ द पीपल दे यूज @ इन पासवर्ड्स, @ और वो क्या करेंगे, डाल देंगे 98, या तो 1998, या फिर डाल देंगे 2606. ये कॉम्बिनेशंस होते हैं. हैकर्स क्या करते हैं, हैकर्स को पता है स्ट्रेटजी पासवर्ड बनाने की तुम लोगों की. वो क्या करते हैं, वो उस पे, वो पासवर्ड पे ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं. ब्रूट फोर्स मतलब क्या होता है ना, आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालते हो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से. जो मैथ्स में आपने पढ़ा था ना, हमारे पास ऐसे टूल्स हैं. एज अ हैकर, एज अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, वी डू हैव दोस टूल्स. हम क्या करेंगे, हम आपके कीवर्ड्स उठाएंगे, सारंग 26 जून 1998, हम आपके कीवर्ड्स उठाएंगे, और कीवर्ड्स उठाने के बाद हम उनको एक टूल में पास करेंगे, और उस पर PNC लगा देंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन. वो हम मुझे 1000, 100, lakhs, मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन दे देता है, और वो मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन को हम पास कर देते हैं लॉग इन सिस्टम में. आपका जीमेल, आपका इंस्टाग्राम के बाद फेसबुक, कहीं ना कहीं तो मैच करेगा ही, कोई ना कोई तो करेगा PNC में, कितने पासवर्ड होंगे, और जैसे ही मैच कर गया वो आ जाएगा, लोग खत्म, सारंग का पासवर्ड ये है, राइट?
So this is the strategy we use. Okay, so this thing is called as brute forcing. Brute forcing means what I am doing, I'm just like, I'm not letting go any option in vain. I'm using every possible combination, right? So when I talk about first phase, that's information gathering, and second one, enumeration. So information gathering is this thing, and enumeration is this thing, right? Okay, so let's just now what I'll do. I just talked about these two phases now. Now, before getting to third phase is basically scanning. Okay, थर्ड फेज इज स्कैनिंग. अब मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गया, मैंने उसको एन्यूमरेट कर लिया. एन्यूमरेट मींस मैंने उसको अच्छे से यू कैन से पैटर्न दे दिया, उसको एक पैटर्न दे दिया, डिफरेंट मतलब एक सेट ऑफ मतलब पैटर्न दे दिया कि हाँ ये पैटर्न हो सकता है एन्यूमरेट करना. देन व्हाट आई हैव डन, मैंने उसको स्कैन करना शुरू किया. स्कैन करने के लिए वी डू हैव डिफरेंट टूल्स, जैसे मैंने ब्रूट फोर्स यूज किया था, राइट? स्कैन करने के बाद नेक्स्ट फेज इज गेटिंग एक्सेस, maintaining access, covering tracks. Right, getting access means होता है this is the final stage where you actually hack the system. Right, आपको सिस्टम का एक्सेस मिल गया, whether it is a website और कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल फोन, एक्सेस मिल गया. अब आप एक्सेस मिलने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस एक्सेस को मेंटेन करो, कि कुछ टाइम को आपको मिल जाए आपको जो चाहिए उसके लिए, राइट, विक्टिम के सिस्टम से. ठीक है, फिर कवरिंग ट्रैक्स इज इंपॉर्टेंट. कवरिंग ट्रैक मतलब आपने दूसरे के सिस्टम को हैक किया, विक्टिम के इंसिडेंट. मान लो विक्टिम को पता चल गया, विक्टिम को कैसे पता चल गया? विक्टिम को पता चल गया, अब इंटरनेट पे आप आइडेंटिफाई होते हो आईपी एड्रेस से, यू ऑल नो आईपी एड्रेस से आप आइडेंटिफाई होते हो, आईपी एड्रेस. और सेकंड थिंग इज मैक एड्रेस, राइट? आईपी एड्रेस डज नॉट गो फर्दर, सॉरी मैक एड्रेस डज नॉट गो फर्दर, लेकिन आईपी एड्रेस आपका एंड नोड तक जाता है, एंड सर्वर तक. अगर आपने गूगल की वेबसाइट सर्च किया ना तो आईपी एड्रेस आपको वहां जाएगा, राइट? तो कवरिंग ट्रैक्स में हम क्या करते हैं, मान लो आपकी विक्टिम को आपका आईपी एड्रेस पता चल गया, आप क्या क्या हुआ फायदा? वो आप पे केस कर सकता है, फ्रॉड का केस लगा देगा, आप जेल चले जाओगे 3 से 5 साल के लिए, राइट? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव देयर आर 2 स्टेप्स. फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग. आप जितना ज्यादा टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालोगे उतने ही अच्छे से आप उसको स्कैन और अटैक कर पाओगे. नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस इज कवरिंग ट्रैक्स. कवरिंग ट्रैक्स मींस आपको खुद बच के रहना है भाई. आपने कहीं डिजिटल फुटप्रिंट अगर छोड़ा है उसके सिस्टम में, देन दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर यू. दे कैन हैक यू, ट्रैक यू डाउन, हंट यू डाउन, राइट? Now, let's just see a typical example, or you can say I'll just show you one thing, or you can say one live demo. I'm not allowed to do this demo, but what I find it very you can say interesting, right? Generally हम क्या करते हैं, हम एक simulated environment में perform करते हैं, but see, मैं इसको perform कर सकता हूँ, but you can't because I do have the permission to do this, right? So let's just ask you one thing. एक www.google.com एक यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में तुमने सुना होगा, अच्छे से सुना होगा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी. हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट दिस यूनिवर्सिटी? सच बताओ. अकॉर्डिंग टू मी सबने ही सुना होगा, आई गेस. Am I audible to all of you? Okay, Pritpal is saying yes. Okay, you guys must have seen the ad in the television. So it says India's largest university, 700 acre campus, and all this stuff. So basically, this is my university. This used to be my university at one time. Okay, I'm a graduate from this university. Okay, so see, इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है. When I passed out from the college, I find out a way to trouble them. ठीक है, अभी मेरे को पता है. This is my target. LPU is my target, right? So what I'm doing, I'm just simply logging into this thing. I'm just going to searching for the stuff where actually I can perform my attack, right? तो मैं इनका वेबसाइट देखा, ठीक है, ओके, राइट, इनका वेबसाइट है, ठीक है, ओके. कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की मैंने यहाँ पे, जैसे कि लाइक सपोज इफ आई वांट टू नो
इन्होंने बैकएंड में क्या यूज किया है. व्हाट आई डू, आई जस्ट डू इंस्पेक्ट एलिमेंट एंड आई सी कि हाँ इन्होंने फ्रेमवर्क यूज किया है. ठीक है, ये हार्ड कोडेड HTML CSS पे है, जावास्क्रिप्ट है, और बैकएंड में इनके पास ओके बैकएंड में फायरबेस है इनके पास, राइट. So these are the things which I can see with the code, right? If I'll just go to view page source code, तो आप देख सकते हो कि ये पूरा वेबसाइट का कोड है. जो भी फ्रंट एंड आपको दिख रहा है ना, उसका कोड है ये आपके पास. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मोस्टली जावास्क्रिप्ट है. ठीक है, CSS ये जावास्क्रिप्ट यूज किया है, जावास्क्रिप्ट के प्लगइन्स यूज किए हैं, jQuery भी यूज किया है. ये सारी टेक्नोलॉजीज है, राइट. तो देखो, अगर आपको वेबसाइट को हैक करना है ना, तो आपको वेबसाइट के बारे में पता होगा कि हाउ अ वेबसाइट इज बिल्ट, राइट. जब आपको उसके पीछे की चीजें पता होगी, सपोज आपको पता चल गया ये वेबसाइट PHP में लिखी हुई है, इसका बैकएंड PHP में, राइट. तो अब तुम्हें पता होगा कि हाँ, अगर ये वेबसाइट PHP पे है तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन परफॉर्म अ SQL इंजेक्शन अटैक, राइट. अगर इसका डेटाबेस SQL पे है और ये PHP पे लिखी गई है, मैं SQL इंजेक्शन लगा सकता हूँ. अगर आपको पता है ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि हाँ, मैं वर्डप्रेस यूज WP स्कैन यूज कर सकता हूँ. WP स्कैन एक टूल होता है काली लिनक्स में, प्लेटफॉर्म काली लिनक्स प्लेटफॉर्म वी यूज फॉर हैकिंग. ठीक है, मैं बताऊंगा अभी. तो अब उसमें सारे टूल्स हैं. जब आपको बैकएंड की टेक्नोलॉजी के बारे में, मैं नहीं कह रहा हूँ यू हैव टू बी मास्टर ऑन दैट, यू जस्ट नीड टू गेट अवेयर ऑफ दिस थिंग. तो जब आप करते जाते हो ना इन सब चीजों को, तो आप सीखते जाते हो ऑटोमेटिकली, राइट. तो जैसे मैं पेज सोर्स पे जाऊंगा ना, सो आई कैन क्लियरली सी, ओके ठीक है, इन्होंने इनलाइन CSS यूज की है, स्क्रिप्टिंग भी यूज की है, राइट. स्क्रिप्टिंग का इनके पास एक कोई पैकेज है. तो ये सब चीजें मुझे दिख रही हैं अभी. तो जब आप सीखोगे ना, आपको भी दिखेंगी, आई एम श्योर, राइट. तो अब मेरे को देखना है कि इनकी चलो और कितने सर्वर्स हैं, वो चीज मेरे को देखना है. तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ. एक तो इनका ये वेबसाइट हो गया. मैं बाकी वेबसाइट्स के बारे में जानना चाहता हूँ, LPU की और कौन सी वेबसाइट्स हैं. ठीक है, तो लेट जस्ट कम टू LPU UMS. So if I just click here, so UMS क्या होता है ना, बेसिकली मैं तुम्हें एक इंट्रोडक्शन दे दूं. UMS इज बेसिकली यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम. LPU इज द फर्स्ट पेपरलेस यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपको कहीं पे वो अनाउंसमेंट बोर्ड्स, ये सब चीजें नहीं दिखेंगी. यू कैन नॉट सी एनीथिंग ओवर देयर. कोई भी क्लास असाइनमेंट है, सारा ऑनलाइन है, सारा प्रेजेंटेशन आपको ऑनलाइन, सबमिशन ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन करना है आपको. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज पेपरलेस यूनिवर्सिटी. तो बेसिकली हमें क्या करना होता था, यहाँ पे हमें कॉलेज ID डालनी होती थी, यहाँ पे पासवर्ड डालना होता था, और हमें सिंपली उसको लॉग इन कर लेना था, राइट. जब हम लॉग इन करते थे, हम वहाँ पे अटेंडेंस, फीस, सबमिशन, मार्क्स, रिपोर्ट कार्ड, ग्रेड, सब कुछ हम हाँ यही देख सकता हूँ, UMS पे देख सकता हूँ. आई डू नॉट नीड टू गो टू द टीचर, आई नॉट गो टू द प्रोफेसर, मुझे कहीं जाना नहीं है. सो अब सोचो, अब ये इतने सारे स्टूडेंट्स का डेटा, कम से कम मतलब स्टूडेंट्स, मैं बताऊं LPU में सारा मिला के 40 to 45 स्टूडेंट्स है, 40 to 45,000 सारा स्टूडेंट मिला लो. सोचो, इनका डेटा कहीं तो स्टोर हो रहा होगा ना, और सिर्फ एक इस पर्टिकुलर इंटरफेस के थ्रू, इस इंटरफेस के थ्रू सेव हो रहा है. तो अब जब आप चीजें सारी ऑनलाइन करते हो ना, तो उसका एक एडवांटेज तो है, बट उसका ड्रॉबैक भी है. अब जैसे यूनिवर्सिटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है ना, इन द सेम वे OMS, व्हेन यू टॉक अबाउट OMS ना, मैं जैसे OMS है, OMS बोलते हैं ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम. एम्प्लॉइज है हमारे, एम्प्लॉइज हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, HODs हैं, इन लोगों के मैनेजमेंट के लिए हमारे पास ये है ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम. तो पहले जब मैं कॉलेज में था ना, कॉलेज में आई वांटेड टू हैक UMS. व्हेन आई पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज, मैंने सोचा एक काम करो यार, मैं जब पेड़ को गिराना चाहता हूँ, तो मैं उनकी पत्तों को थोड़ी टारगेट करूंगा, उसकी जो डालियां हैं उनको थोड़ी टारगेट करूंगा, मैं रूट को टारगेट करता हूँ. तो रूट इज दिस ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम. अब ये ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम से क्या क्या करते हैं हम देखो, किसी टीचर को रिक्रूट करना चाहें, किसी बच्चे की फी पेमेंट देखनी है, हम मुझे चांसलर वाइस चांसलर से मीटिंग फिक्स करानी है,
तो ये सारी चीजें, मतलब ऑथराइज सिग्नेटरी जो होता है, मतलब सारे प्रोफेसर स्टाफ से ऊपर, स्टूडेंट स्टाफ से ऊपर, वो सारा कुछ इससे मैनेज कर सकते हैं हम। तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू जस्ट ट्राई टू हैक दिस सिस्टम। ठीक है, तो फिर मैंने इस पे थोड़ा सा रिसर्च किया, मैंने इसको स्कैन किया, जो भी फेजेस मैंने तुमको बताए थे ना, 5 फेजेस, तो प्रॉपरली आई वेंट थ्रू एवरीथिंग। Okay, I went through information gathering. I went through second phase, that is scanning, enumeration, and everything. Then I find out one, vulnerability, or you can say a weakness in the server of LPU's website. So I'm just going to perform that thing. Just check it out. Okay. So I just simply write this thing. I just write some special characters, right? These are all characters. So I do not know the password, right? So see, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, कुछ भी इस पे डाल के ना तुमको चेक करा देता हूँ, right? So what I'm doing, I'm just typing anything over here. So username ID is this and password, let me type here and let me log in. So it's an incorrect password, right? Now what I'll do, I just find out a way, a combination of character which can bypass this thing. So I'm just typing that only. Okay. So see, I've just written some random characters with the combination of special character, and it's loading still. So you can say transferring data to jQuery. I am getting one notification over here. See, so now I have logged in as a authorized signatory. You can say in the right side top thing, authorized signatory 1. I have hacked into this system. Okay. मैं अभी उनके ऑथराइज सिग्नेटरी को बाईपास करके उनके सिस्टम में आ गया हूँ। और नाउ सी मैं क्या क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू। सो हियर यू कैन सी अपकमिंग ड्राइव्स ओवर हियर, सारी ड्राइव्स हैं। एक्चुअल में जो कंपनी पैसा देती हैं, एक्चुअल में जो कंपनीज पैसा देती हैं, हाउ मेनी, मतलब जो प्लेसमेंट ड्राइव्स होती है उसकी डिटेल्स है सारी मेरे पास। यू कैन सी ओवर हियर, ये स्टाइपेंड यहाँ पे ये, ठीक है। और एक कंपनी आई है डी शॉ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, शॉपर स्टॉप पे तुमने शॉपिंग की होगी, ये 15,000 से 20,000 दे रही है। कॉलेज वाले हम लोगों को अलग ही लेवल पे बताते हैं, अगर कोई कंपनी 10,000 दे रही है ना तो वो बताते हैं 20,000। तो यहाँ से मैं एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी देख सकता हूँ लोगों की। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, देखो एडोबे आई है, एडोब सीएस वालों के लिए आई है, जिसमें देखो एलिजिबल कैंडिडेट, रजिस्टर्ड कैंडिडेट के बारे में पता कर सकता हूँ। और 1 लाख रुपए दे रही है, 1 लाख बोले तो मतलब स्टाइपेंड दे रही है ऑब्वियसली, राइट। नाउ इंटरव्यूज देखो, इंटरव्यू डेट, बायोटेक का प्रोफेसर है, उसकी इंटरव्यू डेट है 25 नवंबर। इंग्लिश का असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसकी इंटरव्यू डेट मैं देख सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, कनेक्शन लॉस टू, अच्छा यूएमएस सर्वर से हो गया, कोई बात नहीं। स्टाफ अटेंडेंस स्टेटस कोई भी नहीं है, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी सारे बंद चल रहे हैं, राइट। एक्शनेबल पॉइंट्स हैं, ये जो भी है, टास्क कंप्लीटेड फलाना ढिमकाना। प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख लो, 2019 का है 3089, 2020 का है, 2020 का है 3402, इतने। और 2021 की भी प्लेसमेंट्स इन्होंने दिखा दी है एडवांस में। 2021 अभी आया नहीं है, लेकिन होते हैं ना कुछ बच्चे की, कुछ कंपनियां कहती है कि हाँ 2021 में इनको लेके जाऊंगा, तो उसकी प्लेसमेंट्स इन्होंने दिखा दी, राइट। नाउ लेट्स जस्ट सी व्हाट अदर थिंग्स आई कैन डू। अपॉइंटमेंट्स, सी आई कैन सी द अपॉइंटमेंट 16 अक्टूबर को डॉक्टर राज प्रकाश आर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनका मोबाइल नंबर ये है, मैं इनकी अपॉइंटमेंट है इनकी, रिगार्डिंग स्टार्टअप रिसर्च ग्रांट डीएसटी सर्व, ठीक है। अब ये विजिट करेंगे, टाइम भी दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट का टाइम क्या है, राइट। अब देखो इनका मोबाइल फोन नंबर है, मैं इनको कॉल करके बोल सकता हूँ कि हाँ मैं एलपीयू के ऑफिस से बोल रहा हूँ, हेड ऑथराइज सिग्नेटरी बोल रहा हूँ, आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है। वो बिलीव कर लेगा, क्यों नहीं बिलीव करेगा, मैं उसको बताऊंगा ऐसे ऐसे था, मैं कुछ भी कर सकता हूँ मैं।
अगर आपको अपॉइंटमेंट फर्दर करानी है तो आपको एक लिंक पे क्लिक करना होगा, मैं उनको एक मलिशियस लिंक भेजूंगा जिसमें वायरस होगा, और वो वायरस क्या करेगा, उसके फोन को हैक कर लेगा, उसका पेटीएम का बैलेंस साफ कर देगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर नागराज प्रकाश को मैं फोन करके बोलूंगा, हेलो डॉक्टर नागराज प्रकाश, आई एम कॉलिंग फ्रॉम ऑथराइज सिग्नेटरी Lovely Profession University. This is regarding your appointment with our Vice Chancellor regarding Startup Research Grant DST, sir. Okay, your appointment time was 12:02, but due to some, some circumstances, your appointment has been rescheduled. I am sending you link to, fix the appointment again to fill up your details, and then you can, again visit to the Vice Chancellor. तो वो बोलेगा ओके ओके सर, नो इशू नो इशू, यू कैन सेंड मी द लिंक। मैं उसको लिंक ऐसे मलिशियस लिंक भेज दूंगा, फेक फेसबुक का पेज भेज दूंगा, जीमेल का पेज भेज दूंगा, कुछ भी भेज सकता हूँ मैं उसको। वो उस पर क्लिक तो करेगा क्योंकि वो सोचता है कि मैं कॉलेज का ऑथराइज सिग्नेटरी हूँ। समझ गए? सो दिस इज द मेन थिंग, हाउ यू टारगेट, समझ रहे हो? अब ये बंदा ऐसा तो होगा नहीं, ये पढ़ा लिखा नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, राइट, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में। So it's never about your education. कोई भी हैक हो सकता है भाई, तुम लोग को भी पता है, तुम लोग भी हैक हो सकते हो, राइट? मैं तुमको सोशल इंजीनियरिंग करके तुम्हारे माइंड को वो करके यकीन दिला दूंगा, देन यू गाइस कैन आल्सो बी हैक्ड। नाउ लेट्स सी हमारे पास और क्या चीजें हैं। मैं जाता हूँ अपॉइंटमेंट्स में, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड है ये, okay, very good. Now see, I can create a new appointment, morning meeting, new appointment, visit, telephonic, मैं किसी की भी बना सकता हूँ, इंटरनल एक्सटर्नल, एम्प्लॉय भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, एम्प्लॉय का नाम भी डाल सकता हूँ, पर्पस और मीटिंग भी एडिट कर सकता हूँ, सेव करके फालतू के अपॉइंटमेंट बनाता रहूं मैं, परेशान करता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। अब पेंडिंग अपॉइंटमेंट जो है मेरे पास, देखो अर्जेंट है, ये भी अर्जेंट है, दोनों की। अमन मित्तल एडिशनल डायरेक्टर है, इसका फोन नंबर ये है, मैं इसको भी हैक कर सकता हूँ। मैं इसको बोलूंगा, हेलो इज दिस अमन मित्तल, यू आर द असिस्टेंट डायरेक्टर, आई एम कॉलिंग दिस 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 फ्रॉम दिस दिस ऑफिस, सो दिस इज योर scheduled appointment was regarding Ghana project approval, but there's some issue. Okay, what I'm do, I'm just sending you one link, you just click on that link and then register yourself again, then your appointment will be up to date. Okay, तो वो भी है, वो भी करेगा क्लिक, obviously he is going to click that link, right? So what I can do over here, मैं डिलीट कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ। सो दिस इज लाइक हैकिंग का पर्पस हमेशा बुरा ही नहीं होता है, बहुत बुरा भी हो सकता है, ठीक है? मैं उससे पैसे मांग सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, राइट? सो बस ऐसी चीजें करनी है जिससे मतलब शक ना हो उसको। मैं मीटिंग भी क्रिएट कर सकता हूँ, देख लो, मीटिंग टाइप, टाइम ऑफ मीटिंग, वो भी कर सकता हूँ। देन इंटरव्यूज देखना चाहता हूँ, इफ यू वांट टू सी द शेड्यूल्ड इंटरव्यूज, दैट थिंग आई कैन आल्सो डू। डिपार्टमेंट नेम, कितने इसके, देखो अब इंटरव्यू है, ये प्रोफेसर के इंटरव्यू है, किस डिपार्टमेंट में कौन सा प्रोफेसर है, मैं तो डिलीट कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ, मैं उनकी इंटरव्यू की डेट भी चेंज कर सकता हूँ। तो सी, हैकिंग इज नो डाउट इट इज फन, बट इट्स एन आर्ट, ठीक है? ये एक कला है, हैकिंग इज अ आर्ट, सो इट्स नॉट टफ। आपने देखा होगा कि सर ने पता नहीं क्या डाला और हैक हो गया, नहीं, उस क्या डालने के लिए मैंने 2 दिन मेहनत करी है, मैंने दिन रात उस वेबसाइट को एनालाइज किया है, उसके बैकएंड को छाना है लिटरली। Then I got to know, okay, there's some problem. So this type of basic problem is called as injection. जो मैंने अभी अटैक परफॉर्म किया ना, उसको बोलते हैं इंजेक्शन, और that is called as inline code injection. अगर मैं स्पेसिफिकली जाऊं, inline code injection, ठीक है? Now let's just see what other things we can do. So this you can see कि जितनी भी है ना ये इंटरव्यूज है, प्रोफेसर्स के शेड्यूल्ड हैं, मैं उनको एडिट, डिलीट और मॉडिफाई कर सकता हूँ, राइट, अकॉर्डिंगली। अभी तक जितने हुए हैं उनका रिकॉर्ड भी अपने पास है। नाउ लेट्स जस्ट गो टू, दिस इज द शेड्यूल। नाउ लेट्स जस्ट एक्सेस टू द फी स्टेटस, ठीक है? मेरे पास एक यहाँ पे ऑप्शन है, बहुत ही डैशबोर्ड पे है, फी स्टेटस। सो आई हैव जस्ट क्लिक्ड ऑन फी स्टेटस and the page is loading. Let's see what data we get.
टिल दैट टाइम लेट्स जस्ट होवर टू अनदर थिंग, लीव स्टेटस देखते हैं कौन कौन लीव पे है भाई। ओके ठीक है, मिस्टर नवीन जुनेजा, ही इज द डायरेक्टर ऑफ कोई खेल, वो लीव पे है। मिस्टर रोहित धान, एसोसिएट डीन, लीव पे हैं। तो ये सारे लीव पे हैं, देख रहे हो आप। मैं इनको भी डिलीट कर सकता हूँ, लीव से हटा सकता हूँ। सो बेसिकली आई एम अबव द डायरेक्टर राइट नाउ। ठीक है, तो वाइस चांसलर को जो दिखेगा ना, वो जो मैं यहाँ से एडिट करूंगा वही दिखेगा। लविराज गुप्ता, संजय मोदी, ये सब सब लीव पे हैं। राइट नाउ लेट्स जस्ट सी फी स्टेटस। अब देखो मेरे पास उनका कॉर्पोरेट डेटा ही नहीं है दोस्त, मेरे पास उनका फाइनेंशियल डेटा भी है। सी अब आप सोचोगे ना, एक इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, आप गेस नहीं कर सकते कि पर डे उनके पास कितना बड़ा अमाउंट आता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। पैसा, कितना पैसा आता है। सी आप देखो ना, 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर आज है, आज के दिन ही इनके पास अमाउंट 51 स्टूडेंट्स ने फीस सबमिट किया है, और इनके पास कितना आया है, 11 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए। ठीक है, कल की बात अगर मैं कहूँ, 17 अक्टूबर पे इनके पास आया था 42 लाख रुपीज। फिर 16 अक्टूबर को 82 लाख, और 15 अक्टूबर को 1 करोड़ 22 लाख रुपए। सी गाइस, एक एक दिन में इनके पास इतना ह्यूज अमाउंट आता है कॉलेजेस के पास। 14 अक्टूबर को 73 लाख, ओके। देन 13 अक्टूबर को 62 लाख, और 12 अक्टूबर को 57। तो मतलब एक हफ्ते का इनके पास डिटेल अगर काउंट करोगे ना आप, एक हफ्ते में कॉलेज लगभग 4.5 करोड़ रुपए कमाता है। ये तो अभी डेटा है जब कोविड का है, कोविड जब नहीं था तब तो पर डे 15 से 20 करोड़ आता था इनके पास फंड में। ठीक है, तो आई कैन सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द फीस, how much draft amount is submitted, how much cash amount is submitted. So how many students, literally submitted the amount. So this is the all data I can do. If I just go to the next page, so I'll be getting the price breakup. So this is, you know uh, leave status I can perform, और भी बहुत सारी चीजें जो मैं कर सकता हूँ। डेली रिपोर्टिंग, कैंडिडेट स्टेटस, if I want to say candidate status that is not available, okay. रिपोर्ट में क्या क्या है मेरे पास, ऑफर लेटर रिपोर्ट है। ऑफर लेटर रिपोर्ट में लेट्स सी व्हाट थिंग्स वी हैव। ओके, आई जस्ट नीड टू टाइप द डेट, आई गेस आई एम नॉट एबल टू क्लिक द डेट। ओके, so let's just write 17/10/2020, एंटर वैलिड डेट। जो भाई कैसे डालनी है ऐसे डालते हैं, 10/2020। उसका फॉर्मेट है कोई पता नहीं क्या बता रहा है। तो बेसिकली आई कैन गेट द डिटेल्स ऑफ ऑफर। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब यू कैन परफॉर्म। तो दिस टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड एज इंजेक्शन अटैक, और यू वॉन्ट बिलीव इंजेक्शन अटैक इज द, यू कैन से पिछले 20 से 22 सालों से इट्स अ टॉप, इट्स ऑन टॉप। ठीक है, सो देयर इज अ कैटेगरी ऑफ अटैक्स, ठीक है, इन हैकिंग, और so the injection is always trending at first place, it's always on first place. So there is a more categorization of injection attack. तो जब इंजेक्शन अटैक की आप बात करते हो तो जो मैंने परफॉर्म किया उसको इनलाइन इंजेक्शन अटैक बोलते हैं। फिर आता है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, ठीक है, फिर आता है डीएलएल इंजेक्शन अटैक। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स है। ठीक है, डीएलएल इंजेक्शन अटैक में डेटा लिंक लाइब्रेरीज जो विंडोज में होती हैं, बेसिकली जो आप जिसको आप बोलते हो ड्राइवर्स, वो उस पर अटैक करता है। जो भी ड्राइवर, हर सॉफ्टवेयर का एक ड्राइवर होता है, ठीक है, आप देखते हो ऑडियो ड्राइवर, साउंड ड्राइवर, तो ये उन पे डेटा लिंक लाइब्रेरीज पे अटैक करता है। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक इज मोस्ट फेमस एंड कॉमन, दिस इज यूज्ड फॉर डेटाबेस एक्सेसिंग द डेटाबेस डायरेक्टली, डेटाबेस हैक करने के लिए। एक वेबसाइट में जो भी डेटाबेस अवेलेबल है, फोटोज, वीडियोज, कुछ भी, मतलब उस वेबसाइट में एडमिन का डेटा भी होगा, यूजर का डेटा भी होगा, एडमिन का डेटा भी होगा, एडमिन का यूजर लॉगिन और यूजर का लॉगिन,
हर के पासवर्ड भी वहीं पे होता है. So we get the password, we attack, we perform SQL injection, we get the data, we dump everything. Then what I'll do, I'll look for every table. हर टेबल में जहां पे भी एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड होता है, मैं उसको उठाता हूँ और उस वेबसाइट में लॉग इन करता हूँ एज अ एडमिन. फिर उस वेबसाइट का कंटेंट चेंज कर देता हूँ. आपने देखो ना, पाकिस्तानी अटैक करते हैं. 2019 में DU 2018 या 19 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हैक किया था. वो एसक्यूएल इंजेक्शन का ही पार्ट था. उन्होंने उनकी जो होम पेज वेबसाइट थी उसको हैक करके उसका होम पेज चेंज कर दिया था, वहां पे अपना नाम लिख दिया था. सो दीज आर द सम एग्जांपल फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन. सो दिस दिस वाज द बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट. जब आप एथिकल हैकिंग में एक्चुअल आओगे ना, सो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग. और यू कैन से सी, आपको इफ यू वांट टू अचीव समथिंग दैट इज, आपको दिखता है कि हाँ इसने बड़ा इजीली कर लिया, बट उसका एक प्रोसेस होता है. फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आप हैकिंग नहीं सीख जाओगे. यू नीड टू सेट योरसेल्फ अप. आपको पहले आपको एक बेस बनाना होगा, कुछ बेसिक सीखना होगा. एथिकल हैकिंग में थोड़ा सा बेसिक, जिसको नेटवर्किंग आता है दैट इज फाइन, जिसको नहीं आता है उसको थोड़ा सा बेसिक सीखना पड़ता है. जैसे व्हाट इज लैन, ठीक है, व्हाट इज मैन, व्हाट इज वैन, ये सारी चीजें. लोकल एरिया नेटवर्क का सिनेरियो क्या होता है, डिवाइसेस के बारे में, स्विच, हब, ये सब क्या होते हैं, ये सारे कैसे परफॉर्म करते हैं. थ्री वे हैंडशेक क्या होता है, 4 वे हैंडशेक क्या होता है, 2 वे हैंडशेक क्या होता है. OSI जो अपना लेयर है, वो जो 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है. फिर TCP/IP जो मॉडल है, वो उसमें जो 5 लेयर्स होती है उनके बारे में पता हो. कुछ प्रोटोकॉल्स पता होनी चाहिए. FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, SMTP क्या होता है, सिंगल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, STTP, ये सब चीजें, FTP, सिक्योर शेल, ठीक है, टेलनेट, ये सारी चीजें. पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि FTP कैसे 21 कब यूज करता है, 22 कब यूज करता है, सिक्योर कनेक्शन में 21 क्यों यूज करता है. तो कुछ पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. और OSPF वगैरह जितना भी, मतलब नेटवर्किंग का जो भी बेसिक स्टफ है ना, नेटवर्किंग तुमको पूरा नहीं सीखना है. कोई भी अगर बोल रहा है कि आपको नेटवर्किंग बहुत अच्छा आना चाहिए हैकिंग के लिए, नहीं, ही इज लाइंग. यार बेसिक्स पढ़ो, फिर उसके बाद धीरे धीरे सेशन के अकॉर्डिंग यू कैन, व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट लर्न दोस थिंग्स, राइट. इट इज नॉट मैंडेटरी कि नहीं मेरे को नेटवर्किंग पहले एडवांस लेवल पे कंप्लीट करना है, देन आई नीड टू शिफ्ट टू एथिकल हैकिंग. नो, ऐसे कभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे दोस्त. तो this is all from my side. If you guys have any doubt regarding anything, you can ask me right away. I'll be answering every question. Any question from your side? Any question? Guys, any doubt? I'm not audible. Ask me very frankly. Okay, Akash also. I think nobody has questions. How to live safe? Okay, right. Okay. Akash is asking how to live safe, and Sarang is asking study of ethical hacking, how to join Indian Army. Okay. URI उरी देख के आए हो शायद, उरी. आकाश पवार on web, how to live safe on web. See Akash, there is like I cannot and nobody, मैं क्या कोई भी, nobody can guarantee you 100% security. कोई भी वायरस ले लो, एंटीवायरस ले लो, कोई भी VPN ले लो, कोई भी कुछ भी प्रॉक्सी कुछ भी ले लो, nobody can guarantee you 100% सेफ्टी. आप कुछ ना कुछ डिजिटल फुटप्रिंट जरूर छोड़ते हो. इवन जब आप सिर्फ www.google.com एक्सेस करते हो ना, तब भी आप अपने DNS लीक्स की इंफॉर्मेशन छोड़ते हो. टू लिव सेफ इज व्हाट यू कैन डू रादर देन गूगलिंग हाउ टू लिव सेफ. आपको आपको सीखना पड़े, राइट. सीखना इन द सेंस ऑफ व्हाट यू कैन डू. आपको अवेयर होना पड़ेगा कि एक्चुअली में हैकिंग क्या होता है, ठीक है, और डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, आप कैसे सेफ रख सकते हो खुद को. जब आप दूसरों को हैक करने लगोगे ना, आप खुद की सेफ्टी आराम से सीख जाओगे. दैट इज अ पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी. और
अगर आप जनरल वे में पूछ रहे हो और टेक्निकल वे में पूछ रहे हो तो आई जस्ट से कि यू नीड टू प्रोसीड विद दिस थिंग्स। आप एक बार एक स्टेप लो इस करियर में, राइट। ये सब चीजें सीखो, सुनने में जितनी इंटरेस्टिंग है उससे ज्यादा कई ज्यादा करने में भी होती है। ठीक है, आप विंडोज के बारे में जानते हो, लोग विंडोज के बारे में जानते हैं, यू विल बी लाइक डिफरेंट। आप डिफरेंट ओएस पे वर्क करोगे, दैट इज काली लिनक्स। Kali Linux is the specialized operating system for hackers only, right? So you'll be using that operating system. Linux environment में जाओगे, अच्छी अच्छी चीजें जानोगे। लोग वेबसाइट बनाते हैं, आप वो वेबसाइट को हैक करना सीखोगे। सोचो, ठीक है, आपको सिर्फ 10-15 मिनट लगा करेगा, आप एनालाइज करके बता दोगे कि आपकी वेबसाइट में गिरा सकता हूँ। ठीक है, मैंने तो अपनी स्कूल की, अपने कॉलेज की, मैंने तो क्या क्या नहीं करा यार अपने मतलब कॉलेज टाइम में, बहुत फन करता था। और आई वाज द कूलेस्ट पर्सन। होता है यार, आप अगर सी हैकिंग इज अ मैजिक फॉर मी। आई हैव लर्नड इन लाइक मेरे को 3-3.5 साल हो गया यार, और हैकिंग करते करते, ठीक है, सीखते सीखते अभी भी सीख रहा हूँ। आप सीखते ही रहते हो उसमें, ये चीज बहुत ही मतलब तगड़ी होती है। अब मुझसे कोई पूछ ले कि आप आप अपने आप को 100% सिक्योर रख सकते हो, मैं मना कर दूंगा नहीं। लेकिन मैं तुम लोगों से ज्यादा अपने आप को सिक्योर रख सकता हूँ, आई कैन गारंटी, बिकॉज आई नो दिस थिंग्स। आई कैन हैक यू। ठीक है, मैं आपको हैक कर सकता हूँ, तो मैं खुद भी सिक्योर रह सकता हूँ हैकर से। सी, चोर को पकड़ने के लिए आपको पता चलना चाहिए कि चोरी चोर कैसे करता है। ठीक है, पुलिस वालों में स्पेशलिटी होती है, उनको पता होता है कि ये चोरी कैसे कर सकता है, उनको स्ट्रेटजी पता होती है। तो आपको एक मतलब साइबर सिक्योरिटी में जाने से पहले आपको हैकिंग इसलिए सिखाते हैं, उसके बाद आप साइबर सिक्योरिटी में जाओगे। तो मतलब हैकिंग इज लाइक चोर चोर, एंड साइबर सिक्योरिटी गाइज आर बेसिकली पुलिस कॉप्स। ठीक है, दे आर द कॉप्स। तो अगर मैं पुलिस में हूँ, मुझे पता है कि हाँ ये चोर ऐसे करेगा, तो इसीलिए आई एम इन साइबर सिक्योरिटी। तो आकाश, इफ यू वांट टू लिव सेफ, बेसिक जर्नल लेवल पे व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट सिंपली यूज सम प्रॉक्सीज एंड वीपीएन्स। फ्री प्रॉक्सी वीपीएन मत यूज करना, पेड प्रॉक्सी वीपीएन यूज करो। जब भी आप वेब पे अपने आप को सिक्योर करना चाहते हो, कुछ भी एक्सेस कर रहे हो, बस पब्लिक पब्लिक वाईफाई, पब्लिक चीजों से दूर रहो, पब्लिक इंटरनेट से दूर रहो। कोई भी मलिशियस लिंक आए उसको तुरंत रिपोर्ट करो। ये सारी चीजों से आप अपने आप को सेफ रख सकते हो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करो, जो ओटीपी आके, वो सारी चीजें आप पढ़ते हो एक्चुअली। ठीक है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करो। ओके, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। Sarang is asking, in study of ethical hacking, how to join Indian Army? Okay, uh, Indian Army. See, जितने भी ये इंडियन आर्मी, ये सारी चीजें सर कॉन्फिडेंशियल होते हैं। मतलब तुमने कहीं पोस्ट नहीं देखा होगा कि इंडियन आर्मी इज क्या कर रहा है, इंटरव्यू रख रहा है, और यू कैन से रिक्रूटमेंट ले रहा है हैकर्स की, कहीं नहीं देखा होगा। ऑफिशियल पोस्ट नहीं होता है, सारा एकदम ये लाइन ऑफ वे में होता है कि कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं हाई लेवल पे। तो वो आपको खुद ही कांटेक्ट करेंगे बाय एनी मीन। आप कॉलेज में स्टूडेंट होगे तो मे बी वो आपको कॉलेज के थ्रू करें। ठीक है, या फिर वहाँ पे टेक्निकल पोस्ट निकलती हैं कंप्यूटर सिस्टम्स की। ठीक है, बट आपको उसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो फ्रेशर्स को नहीं हायर करते हैं। ठीक है, वो आपको सिखाएंगे नहीं। आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, आपको एज अ प्रिंसिपल कंसल्टेंट वो रखेंगे, उसकी पोस्ट निकलेगी, उसकी रिक्वायरमेंट निकलेगी। उसकी रिक्वायरमेंट में ऐसा लिखा होगा, ऐसा नहीं लिखा होगा वी वांट हैकर्स, वो ऐसा लिखा होगा कि वी वांट अ टेक्निकल गाय, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ऐसे लिखा होगा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। फिर आप उनसे ऑन कॉल बात करोगे, वो पूरा कॉल रिकॉर्ड होगा, सारा 2 प्रोसेस वे होगा। ठीक है, कोवर्ट चैनल पे होगा। और आप क्या करोगे, आपको वो बताएंगे कि हाँ आप साइबर सिक्योरिटी में आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट करना है, आपको कंटेंट बनाना है, बस वो ऐसा बोलेंगे। उसके बाद वो फिर आपको काम करेंगे। उनका लिमिटेड टीम होता है, दे हैव द फाइनेस्ट हैकर्स, 5 से 10 हैकर्स होते हैं बस उनके पास, ज्यादा नहीं होते, बट वो टॉप लेवल होते हैं, राइट। तो Jayashree is asking, how many programming languages required for learning hacking at starting level? No programming language is required, Jayashree. No, seriously no. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आना चाहिए आपको स्टार्ट करने के लिए। अगर आपको अनदर लेवल पे जाना है, मतलब आपको ऑडिटिंग में जाना है, आपको वीएपीटी में जाना है, आपको मतलब फॉरेंसिक्स में जाना है, फॉरेंसिक्स में भी कोई हैकिंग लैंग्वेज नहीं चाहिए, बट वीएपीटी, एडवांस वीएपीटी में चाहिए स्क्रिप्टिंग, पाइथन, ये सब चीजें बेसिक। अभी के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। एथिकल हैकिंग के लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए कि कोड क्या है। सी, मेरे को एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनानी नहीं आती है, लेकिन मेरे को पता है कि एंड्रॉइड का कोड जावा में लिखा जाता है, एंड्रॉइड स्टूडियो में ये स्ट्रक्चर होता है, बस क्योंकि मैंने उस पर काम किया है, मतलब मैंने एक ऐप को हैक किया है।
तो आप यू डू नॉट नीड एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सीरियसली यू जस्ट नीड टू बी कंप्यूटर गीक, आपको कंप्यूटर यूज करने का आना चाहिए बस। फिर आप धीरे धीरे आगे करियर में बढ़ोगे ना, वो 5-10 साल बाद की बात है। फिर हाँ, आपको स्क्रिप्टिंग, पाइथन, थोड़ा बहुत बैश स्क्रिप्टिंग चाहिए होगा, लिनक्स कोडिंग चाहिए होगा, ये सब चाहिए होगा, वो आप अभी भी सीख सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। बट एथिकल हैकिंग के लिए वो सीखना इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके फाइन। और किसी को, ओम, ओम इज देयर। ओम, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन बेटा? See, if you guys any doubt, you can ask me. Right? If you have no doubt, then it's just final call. और Baki, okay, Sarang is asking, sir, which is the low cost course in the ethical? Okay, low cost course. Sir, there's no such course over here. Low cost course, like why are you like even worrying about course? See, you cannot, आप किसी भी मतलब इंफॉर्मेशन को या नॉलेज को आप कभी आ, आ, वो नहीं कर सकते आप, मतलब नॉलेज को आप कभी प्राइस नहीं कर सकते। लो कॉस्ट कोर्स है फिर तो बेटा आप, यूट्यूब इज द बेस्ट सोर्स। यूट्यूब से वही स्क्रिप्ट किडीज बनते हैं बच्चे, उन्होंने देखा ये कोड किया, टेक्निकलिटी उनको कभी नहीं समझ, साइंस ऑफ हैकिंग उनको कभी समझ नहीं आती है। हैकिंग के लिए आप जस्ट यू कैन सिंपली गो टू यूट्यूब, आप लिख सकते हो हाउ टू हैक वेबसाइट, आप लिख सकते हो, ऐसे आपका चॉइस है, आप सीख भी जाओगे, क्लास 6 का स्टूडेंट भी सीख जाएगा। बट उनको उनसे वो कभी जॉब नहीं पकड़ पाएगा, वो हैकर नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर उस वीडियो पे 2 मिलियन व्यूज होंगे ना, तो सोचो आपके जैसे 20 लाख लोग और है वो चीज कर चुके हैं। ठीक है, तो लो कॉस्ट कोर्स का मतलब नहीं होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। आप एक बेसिक लेवल पे स्टार्ट करो, उसके बाद आप खुद ही करोगे, फिर आपको कोई कॉस्ट की जरूरत नहीं है, फिर आप खुद को गाइड करोगे, आपको पता चल जाएगा ना एक बार कि हाँ हैकिंग में ये सारी चीजें होती है, मुझे ये पढ़ना है। आप एक बार स्टार्ट तो करो, कोई प्रोफेशनल बंदे से आप स्टार्ट करो एक बार, तभी आपको देन यू विल गेट टू नो कि हाँ इतनी सारी चीजें होती हैं। फिर कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, ऐसा नहीं होता कि 10 ट्रेनिंग लेनी है मुझे, नहीं, एक ट्रेनिंग लो, बेस्ट लो, उसके बाद खुद ही आपको स्कोप पता चलेगा। ओम में जाएंगे सर, आगे इसका स्कोप क्या है? भाई पेंडेमिक में कितनी जॉब्स गई हैं पता है? एचआर डिपार्टमेंट पूरा डूबा है, इंडिया बुल्स तो खत्म हो गया, उसके स्टॉक्स बेचे रहे हैं, पूरा एचआर डिपार्टमेंट चला गया, उबर ने अपने एम्प्लॉयज हटा दिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, डेवलपर्स का कट शॉर्ट हो रहा है कि मुझे जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उनको हटाओ। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने जॉब्स खोई है यार, 40% मेरे फ्रेंड्स ने जॉब खोई है पेंडेमिक में, ये 6 महीने के अंदर अंदर। लेकिन मेरे दोस्त जितने साइबर सिक्योरिटी में, वो अभी भी वहीं के वहीं हैं, मैं भी हूँ, घर से काम करता हूँ, और लिटरली मेरे को ज्यादा काम नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि तुम सोचो ना, पेंडेमिक ने क्या किया है, पेंडेमिक ने सबको ऑनलाइन ला दिया, एवरी वन इज ऑनलाइन ड्यू टू दिस कोविड-19। नॉन टेक्निकल person is also using laptop, accessing his he's doing his office work online only। तो अब जितने ज्यादा लोग ऑनलाइन हो रहे हैं, सोचो कितना ज्यादा वल्नरेबिलिटी आ रहा है, हैकर्स को स्कोप मिल रहा है, हैकर्स को एक क्लियर फील्ड मिल रहा है प्ले करने के लिए। तो अब उन लोगों की जो सिक्योरिटी है वो रिस्क पे है। अब कंपनीज क्या कर रही है, कंपनीज हायर कर रही है साइबर सिक्योरिटी गाइस को ज्यादा, और हायरिंग बढ़ गया। दिस इज द ओनली डिपार्टमेंट जिसमें हायरिंग बढ़ी है। यू वोंट बिलीव, जस्ट लुक एट द स्टैटिक, गूगल पे जाओ, चेक करो, खुद ही चेक करो। समझ गए हो? आगे इसका स्कोप की तो बात ही मत करो यार। मतलब एस्कॉम ने खुद कहा है कि 2020 तक मेरे को 2 मिलियन चाहिए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। मोदी ने कहा है, श्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, 2018 में कॉन्फ्रेंस में बोला था कि इंडिया नीड्स 2 मिलियन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बाई 2020। ठीक है, ये पेंडेमिक ने तो बढ़ा दिया है। आई एम नॉट टॉकिंग द अदर डिपार्टमेंट, आईटी डेवलपर्स वाले तो डूब रहे हैं यार। हमारी जॉब्स अभी स्टेबल है, ऊपर वाले का शुक्र है, क्योंकि लोगों को हमारी जरूरत है। कोई भी कंपनी का फोन आता है, कहते हैं सर हमने ऑनलाइन ये यूज किया था, ये सिस्टम ऐसा हैक हो गया, सर्वर ये सिस्टम आप कुछ कर सकते हो, ये सारी चीजें हो रही हैं हमारे क्लाइंट्स। ओम पटेल सर, बट स्टार्ट कहाँ से करें? कभी भी ये मत सोचा करो वन डे और डे वन, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू आर सेइंग वन डे, ठीक है, दो चीजें हैं, और डे वन, योर चॉइस, कहीं से भी स्टार्ट करो, ये ट्रेनिंग से ही स्टार्ट करो। इवन आज तुम्हारी स्टार्टिंग हो गई यार, दिस वाज योर डे वन। मतलब मैंने बोला ना,
if you want to get into this thing completely na, ethical hacking into cyber security, you need to start from day one. ठीक है, वन डे करते रहोगे, एक दिन सीखूंगा, नहीं, कभी नहीं आएगा वो दिन बेटे. अभी क्या है ना, आई कैन गाइड यू, एंड यू नो, मैं क्या, कोई भी जो भी अच्छा प्रोफेशनल बंदा होगा जो उस चीज में ऑलरेडी फेस कर चुका है, वो तुम्हें गाइड कर सकता है, राइट. आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता पाऊंगा कि राइट, तुम्हें क्या करना है. सबसे पहले नेटवर्किंग का बेसिक्स करना है. अगर हम ये कोर्स स्टार्ट करेंगे ना, हम वो सारी चीजें कवर करेंगे ऑब्वियसली. अगर आप ये इंटरेस्ट दिखाते हो कि आई वांट टू जॉइन दिस कोर्स, राइट, तो सीरियसली मेरे पास पूरा स्ट्रक्चर पड़ा है. देन आपको व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू अटेंड द वेबिनार्स. रोज जितने भी सेशन होंगे यू नीड टू अटेंड, और यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. आई कैन गाइड यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे, बेस्ट पॉसिबल, आई कैन गारंटी. ठीक है, आई कैन गाइड यू बेटर वे कि आपको हाँ नेटवर्किंग स्टार्ट करना है. नेटवर्किंग में भी क्या क्या चीजें पढ़नी है. लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं नहीं मेरे को हैकिंग करना है, नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे, कहेंगे यार नहीं मैं हैक तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, सर ने तो मेरे को तुरंत एलपी2 वेबसाइट को हैक करके दिखा दिया था. तो उसमें डिमोटिवेट हो जाते हैं, खत्म. वो जो अच्छा पार्ट है ना, वो डिग नहीं कर पाते हैं. सर आई एम अंडरस्टैंडिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सो आई इंटरेस्टेड, दिस इज सो प्रॉब्लम. नो, नॉट अ प्रॉब्लम बडी, आई गिव यू दिस. मेरे जो सीनियर है, रोहित सर नाम है उनका, रोहित, तुम यकीन नहीं मारोगे, वो बंदा एमए इंग्लिश से है और वो भी पीडब्ल्यूसी में काम कर रहा है. पीडब्ल्यूसी दुनिया की बिग 4 कंपनीज में आती है, वहां पे प्रिंसिपल कंसल्टेंट है, उसका पैकेज 1.5 करोड़ है, और वो एमए किया हुआ है इंग्लिश में. तो योर बैकग्राउंड इज नथिंग टू डू विद दिस थिंग. साइबर सिक्योरिटी में है वो, क्विकहिल में था. ही जस्ट रिजाइंड आई थिंक 2 years बैक, क्योंकि ही गॉट एन ऑफर फ्रॉम पीडब्ल्यूसी, एंड पीडब्ल्यूसी इज ब्रांड, बिग 4 में आता है. सिर्फ 4 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिग 4 में आती हैं, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, डिलॉयट, और एक और है शायद गोल्डमैन, आई थिंक गोल्डमैन ही है. ठीक है, बिग 4, आई डू नॉट रिमेम्बर करेक्टली. सो दिस इज द थिंग. जयश्री सिंह EY. ओके, सो इज नथिंग टू डू विद योर बैकग्राउंड. आपका स्ट्रीम क्या है, वो सारी चीजें क्या है, कोई भी उससे मतलब नहीं है दोस्त. आप मैकेनिकल से हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, कंप्यूटर से हो, नहीं, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए. आप बेसिक से स्टार्ट करोगे, ठीक है. सो आप जहां से स्टार्ट करोगे, दूसरा कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सीएसई वाला बंदा भी वहीं पे होगा, 0th लेवल पे ही होगा, वो भी वहीं से स्टार्ट करेगा. और जब आप इस सेशन के बाद एंड पे दोनों लोग आओगे, यू विल बी ऑन इक्वल प्लेटफॉर्म. अंडरस्टैंडिंग ENY, या जयश्री ENY. तो गोल्डमैन इज अ फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है. गोल्डमैन सैक्स बहुत बड़ा, सबसे पूरी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, सबसे पुरानी. तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट कि मैं मैकेनिकल में हूँ, सो आप इसमें इंटरेस्टेड हो, प्रॉब्लम्स आएंगी, नहीं, आप साइड में इसको यूज कर सकते हो. मैकेनिकल में आप कर रहे हो, गेट अ जॉब इन मैकेनिकल. जब भी आपको मौका मिले कि हाँ मेरे को एथिकल हैकिंग में शिफ्ट होना है, अगर आप इतने अच्छे हो तो आप आराम से, आपको कोई ना कोई ले लेगा. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. कोई कोई तो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए करता है यार, अपनी सेफ्टी के लिए ये सारे कोर्सेज पढ़ता है कि हाँ मेरे को क्या करना है, मेरे को खुद सेफ रहना है कि मेरा कोई जीमेल ना ले ले. यार ड्राइव्स पे क्या क्या चीजें होती है, हमारा पर्सनल सेंसिटिव डेटा होता है, उसकी सिक्योरिटी के लिए आपको कभी कभी बदला लेना होता है, ठीक है, अपने पुराने प्यार से एंड ऑल दैट स्टफ, राइट. सो आई कांट से दोस थिंग्स ओवर हियर, बट या वी कैन डू. बहुत सारे लोग करते हैं यार कि हाँ नहीं मेरे को बदला लेना है, मेरे को उसका इंस्टाग्राम हैक करना है, मेरे को उसका व्हाट्सएप हैक करना है, मेरे को उसका फेसबुक हैक करना है. ये हैकिंग इज नॉट ओनली अबाउट फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम. आप जब सीखोगे ना, आप सोचोगे अभी ये तो कुछ होता ही नहीं है. आप जिस लेवल पे सीखोगे ना, वो लेवल कुछ और ही है यार. मैं बात कर रहा हूँ एक, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हैक करने का जिसका हर साल का टर्नओवर है 4,000 करोड़. अब उसको कंपेयर तुम कर रहे हो अपने एक्स के इंस्टाग्राम से, नहीं. सोचो तुम उस कंपनी को जब हैक करोगे ना, उसकी कंपनी की वेबसाइट को हैक करोगे, वो कंपनी पागल हो जाएगी, पूरा आईटी टीम हिल जाएगा. तुमने उनकी टेक्नोलॉजी को हिला दिया, वो तुम्हें कितना भी पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे, कितना, जो मुंह से बोलो बस तुम उनको, ठीक है. सो यहाँ पे पैशन आता है, मैटर करता है, मनी नहीं मैटर करता. डेवलपर हो अगर आप ना, वहां पे मनी मैटर करता है. सो
Next question is from Om. Sir, I am in 12th commerce, so BCA is for ethical hacking. Yes, no. BCA is not for ethical hacking. BCA is just, computer application, bachelor of computer application. एथिकल हैकिंग कोई कोर्स नहीं है दोस्त, बीटेक का या कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम का। ये हमारी चॉइस होती है, हम सीखना चाहते हैं, कोई भी सीख सकता है, राइट। ऐसे अगर मैं बोल रहा हूँ मैथ्स इज सब्जेक्ट, मैथ्स इज अ पार्ट ऑफ ये क्या बोलते हैं कि पीसीएम, ठीक है, साइंस गाइस का पार्ट है मैथ। बट एथिकल हैकिंग स्किल को आप किसी चीज से रिलेट नहीं कर सकते यार। स्किल को आप कैसे भी सीख सकते हो। आप घर में बैठे हो, आप हाउस वाइफ हो, आप हैकिंग सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ नहीं कर रहे हो, कोई ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, 10th में हो 12th में हो, आपको हैकिंग सीखना है, सीख सकते हो। आपको डेवलपिंग सीखनी है, आप सीख सकते हो। ओम पटेल, so what should I do? If you are interested in hacking or cyber security, you can definitely proceed with that. Okay, and if you are asking कि 12th के बाद मैं क्या करूं, तो if you want to go for BCA, see ये क्या करता ना, आपके करियर में सपोर्ट करता है। अगर आप हैकिंग सीख रहे हो, आपके पास BCA का बीटेक का डिग्री है कंप्यूटर साइंस का, तो वो आपको करियर में सपोर्ट करेगा, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल से हो और आप एथिकल हैकिंग में बहुत अच्छे हो, फिर आपको उसकी जरूरत ही नहीं है डिपार्टमेंट की। इफ यू आर लाइक फाइन इन एथिकल हैकिंग, फाइनेस्ट हो, तो वो आपकी स्किल देखेंगे, आपका डिपार्टमेंट नहीं देखेंगे। हमेशा यही होता है, दे जस्ट सी योर स्किल्स। इफ यू आर गुड एट स्किल, दे डू नॉट गोइंग टू लिटरली दे डोंट वरी अबाउट योर बैकग्राउंड, कि आपका क्या 12th में क्या लिया था, 10th में क्या था, कोई भी नहीं पूछता यार। मेरे इतने इंटरव्यूज में किसी ने पूछा 10th 12th के मार्क्स, मैं खुद ही बता देता हूँ, फिर भी दे डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन कि व्हाट आर योर स्किल्स राइट नाउ। अब मैकेनिकल से हो, आप उनको बताओगे कि मुझे हैकिंग आती है, वो शॉक हो जाएंगे। वो बोलेंगे आपने आउट ऑफ स्ट्रीम जाके एक स्किल को सीखा, इसका मतलब आप यू आर अ गुड लर्नर, यू आर हायर्ड, ऐसे ही बोलेंगे, यू आर हायर्ड। मतलब बंदे मैकेनिकल में रह के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सोम है वो नहीं पढ़ पाते हैं, आप मैकेनिकल में रह के साइबर सिक्योरिटी में कंप्यूटर साइंस की एथिकल हैकिंग सीख के आ गए, ठीक है। लोगों को डर लगता है, मैकेनिकल वालों को सोम से बहुत डर लगता है, ठीक है। तो यही है, और क्या। if you are interested in home, if you are interested in ethical hacking, then you can definitely proceed with this, because this is your additional skill and that is going to help you some way। यार कोई भी नॉलेज वेस्ट होता ही नहीं है। मैं नॉलेज ट्रांसफर करूंगा ना तुमको, तुम ऐसा नहीं होगा कि मैं तुमको ये ट्रेनिंग दूंगा और तुम्हारा 20 लाख का जॉब लग जाएगा, नहीं। वो किसी ना किसी वे में हो सकता है लग जाए, और मिनिमम क्या होगा कि एटलीस्ट तुम अपने आप को सेफ रख पाओगे। कल को तुम्हें कोई अटैक नहीं कर पाएगा यार, तुम्हें कुछ स्किल्स पता चलेंगी, तो अपने अपने नियर एंड डियर वंस को, फैमिली मेंबर्स को, अपने पर्सनल लोगों को जिनको आप चाहते हो उनको सेफ रख सकते हो। थोड़ी स्किल्स आ जाएंगी, थोड़े कूल हो जाओगी। और अगर आपको उसमें और आगे जाना है, इफ यू वांट टू अगर आप उसमें बहुत ही डीपली जाना चाहते हो, राइट, बहुत ही ज्यादा डीपली जाना चाहते हो, then what you can do, you can just learn that thing in a deep level, ethical hacking, VAPT, ये सब पढ़ो, get a job, interview दो, get selected, खत्म। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है आप उससे पैसे भी कमाओ, कितना अच्छा रहेगा। तो दिस इज ऑल, हैकिंग करके पैसे कमाओ। सारंग, नो सर, आई एम इंटरेस्टेड इन एथिकल हैकर। ओके, सारंग सिंह, सर इफ यू डोंट माइंड गिव योर phone number. Okay, sure.